देश। मेरी माटी मेरा देश is an Indian scheme started by the PM of India. मेरी माटी मेरा देश it shows the spirit of patriotism in my heart. It respects the rich diversity and beauty of my homeland. It signifies the strong bond between the people and the land called their own. Thank you. I ask question. What is the full NCR? What is the full form of NCR? Answer National Capital Region. What is the full form of PCS? What is the full form of PCS? Answer Provincial Civil Service. What is the full form of TRP? What is the full form of TRP? Answer television rating point. My dear brothers, good morning to all of you. I tell some topic about Meri Mati Mera Desh. Every year 15 August is celebrated as Independence Day in India. For the last few years, different programs and campaigns are run by Prime Minister Narendra Modi on the occasion of Independence Day. This year also Meri Mati Mera Desh campaign has been led by Narendra Modi. This campaign will be mainly run from August 9 to August 15 as a historic. While programs will be organized till August 13 under these campaigns in different parts of the whole of India. This year on August 15 he will be complete 76 years. Various events and programs will be organized across the country under Meri Mati Mera Abhiyan. About 75 are from every village of India, and this soil will be used to build the Amrit Vatika garden on the duty path of capital city Delhi. I read about it. You live in more failure than some success. If you believe in yourself and ऐ गुजरने वाली हवा बता मेरा इतना काम करेगी क्या। मेरे गाँव जा मेरे दोस्तों को सलाम दे। मेरे गाँव में है जो वो गली जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा, उसे जाके मेरा प्यार का जाम दे। Which is the smallest bone in the human body? Which is the smallest bone in the human body? Wrong answer. Answer chaps. How many muscles found in human body? Right answer. What is the weight of a human eye? Right answer. देश के इंसानों के साथ ही नहीं प्यार करना चाहिए, बल्कि जो हमारे देश की मिट्टी है, हमारे देश का जो ज़रा ज़रा है, पहाड़ है, जो भी हमारे देश की धरती पे है, हमें उन सारी चीज़ों से जो है मोहब्बत करनी है, प्यार करना है और हब्बुल वतनी का जज्बा अपने दिलों में पैदा करना है। अपनी देश की जो धरती है जिससे बहुत ज़्यादा प्यार करना है। और ये देश जो है आप जानते ही हैं कि 15 अगस्त 1947 से पहले हमारा देश जो है ये अंग्रेज लोग थे उनके कब्जे में था। तो 15 अगस्त 1947 के बाद जो है ये देश जो है हमारा बना था। इस देश को आज़ाद करने के लिए, आज़ादी हासिल करने के लिए बहुत सारी मेहनतें करनी पड़ी थी। बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद जो हिंदुस्तानी लोग थे, हिंदुस्तानी फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने इसको आज़ाद करने में अपनी तमाम तर
want to ask some news. First news, all opposition parties of J&K protested against the policies of central government of delaying the assembly elections in J&K. Second news, Election Commission of India announces election dates for 5 states. Thank you. Members, my dear brothers and sisters, very good morning to all of you. Morning. I am talking about every year in 15 August is celebrated as Independence Day for the last few days. Different programs and campaigns are run from Modi, Prime Minister Mr. Modi on the of Independence Day. This year also the Meri Mati Mera Desh campaign has been started by Modi ji. The campaign will be many for thank you. First of all, very good morning to all of you. I tell the news. First, Bihar government announces 10% reservation for EWS in judicial services. Second, Center extends SBI Chairman Dinesh Kara's tenure August 2024. Third, India has slipped 4 sports to 56 position in the 2023 World Talent Ranking according to the International Institute for Management Development release. The code of Panadura. Right answer. What is the code of Italy? Right answer. What is the code of Greece? Wrong answer. Answer 0030. What is the code of Egypt? What is the code of Egypt? Right answer. हम देखना चाहते हैं कि एयर की मौजूदगी हम कैसे पता कर सकते हैं कि हमारे इर्द गिर्द हवा है या नहीं। इसके ऊपर आज हमारा एक्सपेरिमेंट है। लेकिन सबसे पहले आपको पता है एयर किसे कहते हैं? व्हाट इज एयर? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस। शाबाश। और एयर में जो कंपोजिशन ऑफ एयर ज्यादा क्या दिखने को मिलती है? 78% नाइट्रोजन होता है और ऑक्सीजन कितना होता है? शाबाश। अदर गैसेस कितनी होती है? सारी अदर गैसेस 1%। तो इसी चीज को प्रूव करने के लिए आपको पता है कैन वी सी एयर? फिर क्या कर सकते हैं हम सिर्फ फील कर सकते हैं। वी कैन फील एयर। ठीक है, हम उसका फील कर सकते हैं। इस चीज के लिए इसको प्रूव करने के लिए आज हमने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जिसमें हमने एक टब ले लिया है, इसके अंदर वाटर भरा हुआ और एक गिलास लिया है। तो हम कोशिश करेंगे, देखो एयर के हम ये गिलास इसमें डिप करने की कोशिश करेंगे। अगर हम डायरेक्ट इस गिलास, देखो खाली है ना, हम इसको जब डिप करेंगे तो बहुत ज्यादा दबा के मैंने इसको नीचे, फिर भी बबल्स आए, एयर ने गिलास से बाहर भागने की कोशिश की। ये हमारा गिलास है, ये अभी पूरा खाली गिलास है, इसके अंदर पानी है ही नहीं। इतना दबा रखा मैंने, अगर थोड़ा सा भी मैं प्रेशर यहाँ अपनी उंगली का हटाऊं तो गिलास एकदम ऊपर भागने की कोशिश करेगा। ये देखो रीजन, इसके अंदर एयर मौजूद थी। ठीक है, क्योंकि पानी नहीं था। लेकिन दूसरा तरीका है कि मैं डायरेक्ट इसको दबाऊंगा। अब मैं गिलास को थोड़ा टिल्ट करूंगा, टेढ़ा दबाने की कोशिश करूंगा। जो एयर इसमें होगी, अभी तक इसमें एयर मौजूद है, जब तक वाटर की सरफेस पे मैं नहीं लेता, सीधा मैं डालूंगा गिलास कभी नहीं जाएगा। थोड़ा थोड़ा मैं इसको टेढ़ा करने की कोशिश करूंगा, बबल्स की फॉर्म में एयर बाहर निकलेगी। ये देखो निकल रही है, निकल रही है, निकल रही है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये बबल्स की फॉर्म में एयर बाहर भाग रही है। अब मैं आराम से इसको फिल कर सकता हूँ। आप डायरेक्टली इसको नहीं दबा सकते क्योंकि सारी एयर अभी गिलास में है ना, इसीलिए ये गिलास जो है पानी के अंदर डिप नहीं हो सकता है। इसको करने के लिए, एयर बाहर निकालने के लिए हमको गिलास को थोड़ा टिल्ट करना पड़ता है, मतलब टेढ़ा करना पड़ता है, और बबल्स की फॉर्म में एयर बाहर आ जाती है। ठीक है, कोई बच्चा चाहेगा इसको चेक करना है? कोई कमेंट आना चाहोगे? ठीक है, तो आपको पता चला एयर जो है, एयर कहाँ कहाँ पे मौजूद होती है। ठीक है, एयर आपको पता लगा आप कहाँ, आप एयर की फीलिंग कैसे कर सकते हैं? हवा को हम फील कर सकते, देख नहीं सकते। ये आज प्रूव हो गया। अब गिलास के अंदर हवा थी, हमको दिखी तब भी हमको पता नहीं लगा, लेकिन जब हमने पानी में ये तजुर्बा किया तब जाके हमें पता चला कि जब हम गिलास को डीप करने लगे ये नीचे क्यों नहीं जा रहा। रीजन, जो गिलास के अंदर स्पेस है वो हवा से भरी है। जो ही हम इस गिलास को टेढ़ा करते हैं, जैसे टेढ़ा करते हैं, टेढ़ा नहीं सीधा लेना कभी। अब अगर टेढ़ा करोगे बबल की फॉर्म में एयर भाग रही है बाहर। किसकी फॉर्म में? वाटर की। और उसके लिए हमको गिलास टिल्ट करना पड़ता है। तो ये एयर के ऊपर एक्सपेरिमेंट कैसा लगा आज का एक्सपेरिमेंट आपको? गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग। जैसे कि हमने कंप्यूटर का एक चैप्टर पढ़ा है
MS पावर पॉइंट, है ना, हमने प्रेजेंटेशन के बारे में उसमें पढ़ा है। तो मैं आज आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी हम एक प्रेजेंटेशन को कैसे ओपन कर सकते हैं, हाउ वी मेक प्रेजेंटेशन, हम प्रेजेंटेशन को कैसे बनाते हैं, स्लाइड्स हम कैसे सिलेक्ट करते हैं, हमने उसके डिफरेंट व्यूज़ पढ़े थे, मैं आज आपको वो प्रैक्टिकली दिखाऊंगी। सबसे पहले आपको ये ऑन करना आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये देखिए, हम सबसे पहले जाएंगे यहाँ पर, स्टार्ट हो गया। अब देखिए हमने पावर पॉइंट डालनी है, कहीं में ऑप्शन आ जाते हैं, देखो यहाँ पे आपको पावर पॉइंट दिख रहा है ना। अगर नहीं भी आए तो आप यहाँ पे इसको सर्च कर सकते हैं, जैसे POWER पावर POINT पावर पॉइंट, सॉरी, यहाँ पे पहले क्लिक किया, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं POWER पावर POINT, तो हमारे पास देखो पावर पॉइंट के प्रेजेंट यहाँ पे आगे पावर पॉइंट, हमने यहाँ पे क्लिक करना है, किया। अब हमने वेट करना है, यहाँ पे ये देखो आ गया, ये MS पावर ऑफिस खुल गया, है ना। यहाँ पे अब हम क्या कर सकते हैं, अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। अब देखिए, जैसे ब्लैंक प्रेजेंटेशन हमने ले ली, सिलेक्ट कर दी, हमारे पास आ गई, आई ना, हमारे पास ये पेज ओपन हो गया, इट मीन्स हमारे पास फर्स्ट पेज आ गया। हम इसका फॉर्मेट चेंज भी कर सकते हैं, देखिए रिव्यू में जाना है, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ये हम इनके फॉर्मेट्स चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने कुछ लिखना है तो हम यहाँ से फॉन्ट साइज, ये देखिए फॉन्ट लिखा है यहाँ पे, है ना, फॉन्ट लिखा है ना, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अपने ये राइटिंग स्टाइल जो वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे चले गए, मुझे कुछ भी लिखना है, यहाँ पे क्लिक किया। अब जैसे कि मैं लिख देती हूँ MS पावर पॉइंट पे मैं आपको एक प्रेजेंटेशन बनाना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी, कैप्स लॉक सेलेक्ट की। इस कैप्स लॉक का मतलब क्या हुआ, हम अल्फ़ाबेट का लेटर कैपिटल लिखेंगे, देखिए, सॉरी, कैप्स लॉक MS स्पेस, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट पे जाना है, तो हमने क्या करना है, एंटर करना है, हम नेक्स्ट पे चले गए। अब हमने ये एक हेडिंग दे दी, अब हमने अपना कर्सर लेना है, यह इस पेज पे क्लिक कर देना। अब हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं, यहाँ पे लिखना चाहते हैं, ठीक है। अब ठीक है, ऐसे हो गया। फिर उसके बाद जैसे ये देखिए, लेआउट के बारे में पढ़ा था आपने, ये देखो ऐसे, ये लेआउट्स, ये देखो ऐसे ऐसे आ जाएगा। फिर लेआउट में जाएंगे, हम अपना डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं, हम देखियो आ गया, देखो लेआउट में सारा हो रहा है, ये चेंज हो रहा है इसका पैटर्न, ये देखो, ये देखो, जब हम डिफरेंस बताने होते तो हम ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, ये देखो, है ना, ये सब आया। देखो हमने डिज़ाइन के बारे में पढ़ा है, अब डिज़ाइन में क्या कर सकते हैं हम लोग, देखो ऐसा डिज़ाइन आ गया, है ना, चेंज हुआ डिज़ाइन में, देखो, है ना, डिज़ाइन में ये सब चेंज होता है, बैकग्राउंड चेंज होता है इसका। अब स्लाइड शो में ये देखो, स्लाइड शो में हमारा ये आ गया, ये एंड हो गया। ये सबको समझ आ रहा है? यस मैम। आप ऐसे घर पे भी ओपन कर सकते हो, ठीक है। हाँ, अब एक और था, इंसर्ट में हम कब जाएंगे, देखो जब हमें कोई पिक्चर्स लेनी हो तो यहाँ से पिक्चर्स पे जाते हैं हम लोग, अगर अवेलेबल अगर हो इस पे, देखो इस पे कोई भी पिक्चर हम उसमें से ले सकते हैं। अगर हम सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखो ऑनलाइन पिक्चर्स है ना, जब हमने नेट कनेक्ट किया होता है, ये ऑनलाइन पिक्चर है, ये देखो, है ना, ऑनलाइन पिक्चर, इधर क्लिक करना है तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा। अभी हमारे पास, हमने नेट कनेक्ट नहीं किया इसीलिए इधर नहीं आ रहा है, तो हम इधर ऑनलाइन पिक्चर्स हम डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट हो वो भी ले सकते हैं। देखो शेप्स, ये ऊपर ही रह गई,
ठीक है, मैं होम पे चल जाती हूँ। एक और था, हाँ व्यू के बारे में पढ़ा था। जब व्यू पे आता देखो है ना नॉर्मल व्यू जो हम यूज़ कर रहे हैं, फिर आउटलाइन व्यू में कैसा आ जाता है, देखो ऐसा, मतलब कि ये यहाँ पे हम बना रहे हैं लेकिन उसमें मेन पॉइंट ही हमारा आ रहा है आगे, है ना। ये हमारे पास आउटलाइन व्यू में होता है। अब देखो स्लाइड व्यू में कैसे शो होता है हमें, ये देखो ऐसे ऐसे हमें शोज होती हैं। अब देखो नोट पेज में कैसा होता है, ऐसा शो होता है, ऐसा। फिर उसके बाद रीडिंग व्यू में देखो हमें कैसा शो होता है, ऐसा। ये हमारे व्यूज हैं, ठीक है। अब मैंने सेव को भी आपको बताया था, सेव का भी बताया था ना। यस मैम। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। यस मैम। इतना सबको समझ में आया है। यस मैम। अब देखो जब हम शट डाउन करते हैं तो हमें सबसे पहले इधर जाना है, यहाँ पे ये ऑप्शन दिख रहा है। यस मैम। इधर पावर पे जाना है, देन शट डाउन। हमेशा मॉर्निंग क्लास। आज हमने लेसन शुरू किया है एयर, वाटर एंड वेदर। तो हम वाटर के बारे में पढ़ रहे हैं, उसमें हम 2 प्रोसेसेस के बारे में पढ़ रहे हैं, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। हम इवेपोरेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इसमें आपके एक्टिविटीज़ हैं, तो 1-2 एक्टिविटीज़ मैं करवाना चाहती हूँ। तो इसके लिए हमें हैंकी चाहिए। ये देखिए हमारे पास 2 हैंकीज़ आ गए हैं। गो एंड वॉश करिए इनको गीला, गो एंड वेट इट, गीला करिए अच्छे से। हम इसमें देखेंगे कि ये हमने 2 हैंकीज़ लिए हैं, दोनों को हम सन में रखेंगे। We take both the handkerchief in the sun and spread one hanky and one keep to make a ball. एक को हम बॉल के जैसे बनाएंगे। गिव मी, चलिए कम हियर। ये देखिए एक हैंकी को हम क्या करेंगे, एसएच रहने देंगे सन में, एसएच रहने देंगे, और एक हैंकी को हम स्प्रेड करके जो है यहाँ पे सन में रख देंगे। सॉरी, इसको हम बॉल की तरह रख देते हैं, इसको स्प्रेड करके रख देते हैं, ठीक है। आफ्टर 20 मिनट्स हम इनको ऑब्ज़र्व करेंगे, ओके। आफ्टर 15 मिनट्स हम इनको ऑब्ज़र्व करेंगे कि हमने क्या देखा इसमें। आपने देखा कि दोनों हैंकी क्या है, वेट है, गीले हैं। एक को हमने ऐसे ही रख दिया है, बॉल बना के रख दिया हुआ, और एक को हमने स्प्रेड कर दिया। अब इसमें सनलाइट आने देंगे। अब हम इसमें कोई 20 या 15 मिनट्स के बाद देखते हैं कि क्या ऑब्जर्वेशन जो निकल के आती हैं। देखिए हमारे पास टाइम अब हो चुका है। अब आप इन 2 हैंकीज़ को उठा के ऑब्जर्व करिए, है ना। ये सूख गया, जो हमने स्प्रेड किया था हैंकी वो सूख चुका है, और ये अभी उतना ड्राई नहीं हुआ है ना। तो यही, चलिए टेक योर सीट्स, यही मैं आपको दिखाना चाहती थी। टेक योर सीट्स एवरीवन। टेक योर सीट्स फर्स्टली, देन आई विल डिस्कस विद यू। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो इवेपोरेशन होती है वो लार्जर सरफेस पे जल्दी होती है, ठीक है। ये अब जो हमने स्प्रेड किया था हैंकी, है ना, देखिए कहाँ पे स्प्रेड किया हुआ हैंकी, वेयर इज इट। इस हैंकी को हमने स्प्रेड किया था, आपने खुद टच करके देखा ये थोड़ा सूख गया है ना, लेकिन जो हमने बॉल बना के रखा था हमने हैंकी, वो उतना ज़्यादा नहीं सूखा है, क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा था ना, तभी ये सूख गया। तभी क्या होता है, जो वेल्स, जो पॉन्ड्स होते हैं उसमें उतनी जल्दी इवेपोरेशन नहीं होती है, लेकिन रिवर्स में जल्दी होती है, क्योंकि उसका एरिया जो होता है वो ज़्यादा होता है। गुड मॉर्निंग क्लास। हाउ आर यू ऑल? आई एम फाइन। आज मैं आपको कुछ जो है बताने जा रही हूँ। देखिए ये हमारे पास मेडिसिन है। मैं आपको बताऊंगी जब भी आपको भी मेडिसिन लिखते हो, क्योंकि अब आप बड़े हो रहे हो ना, आपको ये पता होना चाहिए जब हमें कोई डॉक्टर, सबसे पहली बात है कि हमें ऐसे मेडिसिन कभी नहीं खानी है, ठीक है। हमें कब मेडिसिन लेनी है, सबसे पहले डॉक्टर से
प्रिस्क्रिप्शन लेनी है कि डॉक्टर जो भी आपको एडवाइस करेगा आपको वो मेडिसिन लेनी है। अब आप कोई भी मेडिसिन शॉप पे जाते हो, जब आप क्या करते हो मेडिसिन ख़रीदते हो तो आपको उसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट को पढ़ना आना चाहिए, ठीक है, और आपको आज से वैसा ही करना है। तो देखिए यहाँ पर देखिए ये होती है, देखिए यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, यस मैम। ये देखो यहाँ पे ये मैन्युफैक्चरिंग डेट है, यस मैम। इसका रेट भी दिया होता है MRP, है ना, और क्या दिया होता है एक्सपायरी डेट। जब भी एक्सपायरी डेट वाली कोई भी मेडिसिन होगी आपने वो नहीं लेनी है। देखिए ये मेडिसिन कब बनी हुई है, मार्च 2023 में, और इसकी एक्सपायरी कब होगी, अगस्त 2025 में। इट मीन्स ये 2025 तक ये मेडिसिन चलेंगी, है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए जब भी आपको लेनी है तो आपकी उसको मैन्युफैक्चरिंग डेट पढ़नी है, क्योंकि अब आप बड़े हो रहे हो ना, आप घर में भी सभी को बता सकते हो कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग। अब देखिए ये है मेडिसिन, देखिए यहाँ पे मुझे बताइए इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है। मैन्युफैक्चरिंग डेट बन आई 2022 2022 की बनी हुई है, और एक्सपायरी कब है इसकी, एक्सपायरी 24 हाँ ये 2024 तक ही चलेगी। लेकिन 2024 के बाद हम मतलब कि अगर जो भी मंथ इधर उन्होंने दिया होगा उसके बाद हम इसको यूज़, एक दिन भी ऊपर होगी तो हम उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, वो हमारे लिए पॉइजन का काम कर सकती है, ठीक है। समझ में आया। देखिए आप लोग कोई भी पैक्ड चीज़ लेते हो, है ना, आपको वो भी देख के लेनी है, ठीक है। देखो यहाँ पे भी इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट दी हुई है, और इसका यूज बाय हम इधर तक इसका यूज़ कर सकते हैं, है ना। इसकी भी देखिए मैन्युफैक्चरिंग डेट, देखिए आपको कोई भी इसकी भी देखिए मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट। आपको कोई भी चीज़ लेनी है खाने के लिए, चाहे घर के लिए आप क्या ले रहे हो, ब्रेड ले रहे हो, तब भी आपको उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट जो है वो देखनी है, ताकि आप उसको यूज़ ना करो, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो जाए बाद में, ठीक है। पढ़िए ज़रा, पढ़िए बच्चे, इसमें इसकी देखिए मैन्युफैक्चरिंग डेट 2023, और देखिए एक्सपायरी कब है इसका, यूज बाय हम कब तक यूज़ कर सकते हैं इसको, 2024। वेरी गुड। हाँ इसका देखिए बच्चे, आप देखिए सुफियान, आप देखिए 2023 और 16/2023 हम कर सकते हैं ना अभी तक यूज़ इसको, है ना। अगर आप पैक्ड मिल्क ले रहे हो तब भी आपको उसकी ये चीज़ देखनी है कि एक्सपायरी ना हो गई हो। कईयों में लिखा होता है ना यूज्ड बिफोर 6 मंथ, आफ्टर 6 मंथ, है ना, ये आपको ये सब आपको देखना है, ठीक है। ओके।